ہمارے یہاں فرنیچر پلنگ سنگردان صوفہ سیٹ الماری ڈائننگ ٹیبل کمپیوٹر ٹیبل اور دیگر کمپنیوں کے فرنیچر دستیاب ہے۔ پروپرائٹر مولانا محمد شبیر احمد صاحب، ڈیلکس فرنیچر مال اینڈ ہوم اپلائنسز، فروٹ مارکیٹ کے سامنے، مالٹیگری روڈ، کامٹھا، ناندیڑ۔ السلام علیکم ناظرین، ناندیڑ اردو نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ چلے جانتے ہیں آج کی خبر۔ شواسی وسنت راؤ کالے سینئر کالج کے اس اینوئل ڈگری ڈسٹریبیوشن سیریمنی کے لیے یہاں جو ابھی بات کر کے گئے ہیں ہمارے کمل کشور جی قدم، ایک مثال ہے کہ تعلیمی ادارہ کس طرح چلایا جائے۔ کئی ملکوں میں کئی جگہوں پر انہوں نے درجے دار تعلیم کے ادارے کھولے ہیں، اور کچھ ہی لوگ ہیں ہمارے ملک کے جو اتنی اچھی طرح اپنے تعلیمی ادارے چلاتے ہیں، ایسے کمل کشور قدم صاحب۔ اس ڈائس پر موجود ایڈوکیٹ ایم صدیقی صاحب، جناب مفتی سعد عبداللہ ندوی صاحب، ڈی بی جامرونکر صاحب، ممبر کالج ڈیولپمنٹ کمیٹی، یشونت کاملے جی، اس پروگرام کے لیے خاص یہاں پر اورنگ آباد سے آئے ہوئے خالد سیف الدین صاحب، فیم کے صدر جناب تحسین احمد خان صاحب، اور اس کالج کے سبھی ڈفرینٹ کاؤنسلز کے ممبرز، سٹاف ممبرز، اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے طلباء و طالبات۔ تو آج کانووکیشن سیریمنی کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ ہماری زندگی کی ایک منزل طے ہوئی ہے اور ہمارے ہاتھ میں آج ایک ڈگری سونپی جا رہی ہے۔ ڈگری وہ چیز ہے جو زندگی میں آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے۔ آپ کی دولت چھینی جا سکتی ہے، آپ کی ہر چیز چھینی جا سکتی ہے، لیکن آپ کی ڈگری زندگی بھر آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ تو آج علم کی مشعل لے کر ملک اور معاشرے کا اندھیرا دور کرنے کے لیے آپ نکلے ہیں، لیکن علم، تعلیم میں ڈگری ایک بہت چھوٹی سی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ ڈگری یافتہ بہت لوگ ہیں اس ملک میں، لیکن صلاحیت والے، صحیح تعلیم جن کو ملی ہے، ایسے لوگ بہت کم ہیں، اور ان کا بہت ڈیمانڈ بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس ملک میں بہت ان ایمپلائمنٹ ہے، بے روزگاری ہے، لیکن جتنی بے روزگاری ہے اتنی ہی صلاحیت والے ڈگری یافتہ لوگ ملنے کی کمی ہے۔ ایمپلائیبل یوتھ بھی نہیں ملتے ہیں۔ تو ان ایمپلائمنٹ اور ایمپلائیبلٹی دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، اور ایمپلائیبل ہونے کے لیے صرف ڈگری کافی نہیں ہوتی ہے۔ ایمپلائیبل ہونے کے لیے آپ میں کچھ اور صلاحیتیں بھی آنا ضروری ہے، اور جب آپ کارپوریٹ سیکٹر میں جا کے اپلائی کرتے ہیں یا کسی ایسے ادارے میں جا کر اپلائی کرتے ہیں تو وہاں ڈگری سے زیادہ آپ کی دوسری صلاحیتوں کو دیکھا جاتا ہے۔ جو سکورز ہے، جو کتنے نمبر ملے ہیں، اس کی اہمیت وہاں کم ہے، لیکن آپ کے کمیونیکیشن سکلز کیسے ہیں، آپ کا کانفیڈنس کیسا ہے، آپ کی پرسنالٹی کیسی ہے، یہ چیزوں کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی بہت بڑی پوزیشن پر، یعنی 4-5 لاکھ روپے مہینے کی سیلری پر آپ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس بہت بڑی ڈگری نہیں ہے، لیکن ان کے اندر کیپیسٹی ہے، کیپیبلٹی ہے۔ تو ڈگری کے ساتھ ساتھ عمر بھر ہم کو یہ کیپیبلٹی حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔
तालीम कभी खत्म नहीं होती है, तालीम जिंदगी भर जारी रहती है। जब तक हमारी आखिरी सांस न ले ले हम, तब तक इंसान एजुकेट होता रहता है। और इसीलिए कहा जाता है कि बुक्स, हमारे किताबें हमारे सबसे ज्यादा गहरे दोस्त हैं। बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। और जो जिंदगी में आज भी आप बड़े लोगों के नाम अगर सुनेंगे, तो उन बड़े लोगों की फहरिस्त में आपको एक भी नाम ऐसा नहीं मिलेगा जो बड़ा बना लेकिन जो किताबें नहीं पढ़ता हो। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जिंदगी में बड़े बनना चाहते हो, नाम कमाना चाहते हो, तो आप हमेशा जनरल रीडिंग करिए। आज के जमाने में सिर्फ पढ़ाई पर से लोगों का रुझान हट गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने फौकियत ले ली है। और टेक्नोलॉजी की वजह से अब रीडिंग की, हमारे पढ़ने की, मुताले के हैबिट्स कम हो रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को मशवरा देना चाहती हूं कि जिंदगी में कामयाब बनने के लिए हमको हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। किताबें जो है उनको हमने अपना गहरा दोस्त बना लेना चाहिए। और हमेशा हमेशा आप जब तक बूढ़े ना हो जाए, जब तक बिस्तर से न लग जाए, तब तक आप रीडिंग करते रहिए, तो आप भी एक सितारे की तरह चमकेंगे। भले ही आप डॉक्टर बन जाए, भले आप कोई इंजीनियर बन जाए, भले ही कोई भी क्वालिफिकेशन ले लें, लेकिन आपका पर्सनालिटी का जो चमक है, आपकी पर्सनालिटी की, वो आपके मुताले से ही रहेगी, ऐसा मैं कहना चाहती हूँ। यहाँ पर 80% लड़कियां डिग्री ले रही हैं, पढ़ रही हैं। बहुत ही खुशी की बात है। जब एक लड़की पढ़ती है तो 5 पीढ़ियों को उसका फायदा होता है। वो माँ बनने वाली होती है, वो एक खानदान को संभालने वाली होती है। इसीलिए कहा है कि एजुकेट अ गर्ल एंड शी विल चेंज द वर्ल्ड। लड़के अगर पढ़ते हैं तो एक पीढ़ी को फायदा होता है, लेकिन लड़की अगर पढ़ती है तो 5 पीढ़ियों को उसका फायदा होता है। इसीलिए अपने बेटियों को पढ़ाइए, अपने घर के सब खवातीन को पढ़ाइए। ये इल्म देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन इल्म में क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन? यहां कहा गया है, लोगों ने कहा है कि एजुकेशन सिर्फ बुक्स नहीं है, टेक्स्ट बुक नहीं है, एग्जामिनेशन नहीं है, स्कोर नहीं है। एजुकेशन आपके अखलाक है, एजुकेशन आपका कैरेक्टर है, किरदार है, एजुकेशन आपका सलीका है और आपका शऊर है। अगर आपके अंदर शऊर पैदा नहीं हो रहा है, अगर आप सेल्फ थिंकिंग नहीं है, खुद सोच नहीं सकते हैं, तो वो एजुकेशन नहीं है। अगर आप खुद की सोच इंडिपेंडेंट रखते हैं, अगर आप भेड़ बकरियों की तरह समाज के पीछे नहीं चलते हैं, किसी ने एक आवाज दी और हम सारे भीड़ की तरह पीछे चलने वाले, वो लोग ये नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, जो आज की महफिल में हैं। और इस महफिल के बारे में मैं ये कहूंगी कि आपकी महफिल और मेरी आंखें, आपकी महफिल और मेरी आंखें दोनों भरे भरे हैं। क्या करें दोस्त, दिल पर लगे जख्म सब हरे हरे हैं। आज ऐसे जख्म है हमारे दिलों पर, हमारे माशरे पर। आप और हम सब जानते हैं कि आज के हालात क्या हैं। और आज के हालात में मिर्जा गालिब का वो शेर कि खदो गेसों में खैसो कोहकन की आजमाइश है। खैस और कोहकन, उनकी आजमाइश उनकी अपीयरेंस में थी। कद कितना लंबा है, बाल कितने लंबे हैं। जहां हम हैं वहां दारो रसन की आजमाइश है। हम तो आज फांसी के फंदे की आजमाइश हम पर है, हमारे माशरे पर है। बच्चों, बहुत जिम्मेदारी का वक्त है, हम गफलत में नहीं रह सकते हैं। आप वो लोग हैं जो इस
मुल्क का, इस माशरे का मुस्तकबिल है और इस मुस्तकबिल को गफलत में रहने से काम नहीं बनेगा। इस आजमाइश को, इस चैलेंज को हमको मीट करना है और इस चैलेंज को मीट करने के लिए हम लोगों को बहुत मजबूत बनना होगा। हम लोगों को राइट और रॉन्ग का फर्क समझना होगा। मौलाना साद ने यहाँ पर आपको हदीसें बताई, इन्होंने आपको दीन क्या कहता है तालीम के बारे में वो बताया। हाँ, हमारा दीन तालीम को फौकियत देता है, तालीम पर एम्फसाइज करता है कि हम सब ने तालीम हासिल करना चाहिए। लेकिन कौन सी तालीम? आज जो हमारे सामने डिजिटल वर्ल्ड खुली हुई है, आज माशरा बदल गया है, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। हमारे सामने अच्छी तालीम भी है, बुरी तालीम भी है, सही भी है, गलत भी है। हमको सिलेक्ट करने का शऊर होना चाहिए कि हमारे लिए मुफीद कौन सी तालीम है, क्या सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो चीजें अगर आप पढ़ेंगे जो आपके लिए नुकसानदाह है तो आप गलत रास्ते पर चल जाएंगे। हमें अल्लाह की मदद भी इसमें मांगना चाहिए, हमने दुआ करना चाहिए, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबा व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा बिरहमतिका या रहमर राहिमीन, कि ऐ अल्लाह हमको हक़ क्या है वो दिखा और उस पर चलने की तौफीक दे, और हमको गलत क्या है वो दिखा और उस पर चलने की तौफीक दे, और तू ही रहमान और रहीम है। ये दुआ पढ़िए, क्योंकि आज के जमाने में सही और गलत क्या है इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन है। आप व्हाट्सएप पर देखते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, क्या सही क्या गलत, गूगल पर जो दिया हुआ है आप वहां से पढ़ने की कोशिश करते हैं। गूगल पर हर चीज सही नहीं होता है, बहुत सारे चीजें गूगल पर और यूट्यूब पर जो है गलत सलत, व्हाट्सएप पर गलत सलत रहते हैं। वहां से नॉलेज हासिल करने की कोशिश ज्यादा मत करिए, थोड़ा बहुत करिए, लेकिन वेरीफाई करिए किताबों से, किताब में वेरीफाई करिए, किताब सच्ची होती है, किताबों से देखकर रिसर्च कर तालीम हासिल करिए। एक सबसे बड़ी खामी जो हिंदुस्तान की तालीम में है वो ये है कि हमारे पास रिसर्च एटीट्यूड नहीं है। हम रिसर्च नहीं करना चाहते हैं, हम रेडीमेड काम करते हैं, कट पेस्ट की हमारी तहजीब है। लेकिन जब हम इन्वेस्टिगेशन और ढूंढ कर तलाश कर नॉलेज हासिल करने का काम करते हैं तो वही लोग सही तालीम याफ्ता है, ऐसा कहा जा सकता है। तो आपको मुबारक हो, आप डिग्रीज लेकर जा रहे हैं, लेकिन इन डिग्रीज के साथ साथ जो टेक अवे आपको लेना है वो ये है कि ये डिग्री हमारी जिंदगी की पहली सीढ़ी है, अभी बहुत सीढ़ियां चढ़नी है हमें, और तालीम जिंदगी भर हासिल करना है। इतना ही कहती हूँ, फिर एक बार आप लोगों को मुबारकबाद देती हूँ और अपनी जगह लेती हूँ। शुक्रिया। हमेला ख़वातीन और औरतों के दिगर अमराज बांझपन के इलाज के लिए फैमिली प्लानिंग की मशवरात के लिए बेहतरीन आलात की सहूलत में नॉर्मल और ऑपरेशन से बच्चों की पैदाइश के लिए और ज़चगी के साथ साथ औरतों के दिगर अमराज के इलाज के लिए खुसूसी नज़्म केरला के मल्टी स्पेशलिटी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तजुर्बेकार डॉक्टर खान सारा नुदरत, मावीन मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम, चावलवाला कॉम्प्लेक्स, SBI बैंक के ऊपर, देगलू नाका, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।